یہ سورۃ الکہف جو ہے، اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کی نسبت سے اس سورت کا نام ہے۔ تو جو آج ہم نے آیات پڑھنی ہے وہ بنیادی طور پر اسی واقعے پر مشتمل آیات۔ ان کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں، ام حسبتا، کیا تو خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے، انا اصحاب الکہف، کہ بے شک اصحاب کہف یا غار میں جانے والے لوگ، والرقیم اور کتبے والے لوگ، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں تھی۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں؟ اس آیت کو پس منظر کے ساتھ تھوڑا سا سمجھیں۔ یہ بات بہت مشہور تھی جو عیسائی مذہب تھا اس کے اندر، کہ اصحاب کہف کے اندر جو نوجوان تھے، جن لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں آغاز اس طرح کر رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک تو یہ واقعی بہت بڑی نشانیاں تھیں، اور ایک طرح سے تھی بھی بڑی، لیکن ہمارے نزدیک اس سے بڑی بڑی نشانیاں بھی موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی۔ تو یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے مقابلے کی اس سے بڑی اور بہت ساری نشانیاں ہیں جو اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر ایک سوالیہ انداز میں آغاز کیا گیا، ام حسبتا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان اصحاب الکہف، کہ اس غار میں جانے والے لوگ، والرقیم اور کتبے والے لوگ۔ کتبہ کیوں کہا گیا؟ رقیم رقم سے ہے، ہم اردو میں لفظ یوز کرتے ہیں نا، رقم، کسی چیز کو لکھ لینا، مرقوم کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے۔ تو جب یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے، اور اس وقت ان کے نام لکھ کے رکھ لیے گئے، مختلف اس کی تفسیرات بیان ہوئی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ان کے نام ایک کتبے پہ لکھ دیے گئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب یہ لوگ بعد میں حقیقی طور پر فوت ہو گئے تو اس وقت ان کے جو نام تھے ایک کتبے پر لکھ لیے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کہا ہے یہاں پہ۔ تو کیا تم سمجھتے ہو یہ ہماری بہت بڑی نشانیوں میں سے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوالیہ انداز میں بات کی ہے۔ حالانکہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اس سے پہلی آیات میں دنیا کی تخلیق کے بارے میں بات ہوئی تھی، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے جو کچھ دنیا میں پیدا کیا وہ اس دنیا کی زینت ہے، اور اس زینت کو پیدا اس لیے کیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو تخلیق کائنات میں اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں میری قدرت کی بنا ہے، اور ان سے تم سبق حاصل کر سکتے ہو۔ ان میں سے یہاں ایک اور جگہ پہ سورہ مومن کے اندر فرمایا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، زمین و آسمان کی تخلیق تو انسانوں کی تخلیق سے بھی بڑا عمل تھا۔ ان کا حجم دیکھیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں اجرام فلکی اور ایک سسٹم پورا اسٹیبلش کیا ہے، اس کی نوعیت کو سمجھے تو وہ تو انسانوں کی تخلیق سے بہت بڑا عمل ہے، لیکن انسان اس بات پہ غور نہیں کرتے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے، اس کا علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں سے اصحاب کہف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اصحاب کہف کون تھے، کیا ان کا عمل تھا، کیا کردار تھا، کیوں وہ اتنے امپورٹنٹ بن گئے کہ ان کا واقعہ تمام لوگوں کے اندر تاریخی طور پر موجود تھا۔ از اول فتیت، جب، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے، اوا کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، آوا، از اول فتیت، جب پناہ لی ان چند نوجوانوں نے، الل کہف، اس غار کی طرف، فقالو، اور ساتھ وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، تو عطا کر ہمیں، من لدنک رحمتن، اپنی طرف سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور تو آسانی پیدا کر ہمارے لیے، رہنمائی پیدا کر ہمارے معاملے کے اندر۔ تو انہیں کیوں پناہ لینی پڑی غار میں؟ یہ ایک ایسے بادشاہ کے دور میں چند نوجوان تھے جو بادشاہ انتہائی ظالم تھا اور شرک کی ترویج کرتا تھا، اور توحید کی دعوت کو بالکل برداشت نہیں کرتا تھا معاشرے کے اندر۔ اور توحید کی دعوت وہ دعوت ہے جو انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کی دعوت کو بھی بیان کیا۔ کی دعوت کیا تھی؟ قرآن کے اندر ہی موجود ہے،
सारे अंबिया इस बात की तरफ दावा देते थे, अने अब्दुल्लाह वजतनिबुत तागूत वलकद बासना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। उस रसूल की दावत क्या थी, उसकी जिम्मेदारियां क्या थी, अने अब्दुल्लाह वजतनिबुत तागूत, वो लोगों को एक अल्लाह की इबादत पर खड़ा करें और तागूत की इबादत से रोकें। तो इस दौर के नबी की दावत भी यही थी। और हकीकत में अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक और इस पूरे निज़ाम की तख्लीक भी अपनी तौहीद की पहचान के लिए ही कराई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज किया, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने भी इसी बात के साथ आगाज किया। कोहे सफा के ऊपर आप खड़े हुए, लोगों को इकट्ठा किया मारूफ तरीके के मुताबिक और उनको दावत दी। और उस दावत में आपने यही बात की कि लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात का इकरार कर लो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे, तमलिकुल अरब वल अजम, अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत भी तौहीद से शुरू, और बाकी अंबिया की दावत की बुनियाद भी तौहीद थी, क्योंकि ये बुनियादी अकीदा है। इससे बंदे की जो एक तखसीस है या उसका मुमताज होना है मुआशरे में, वो इस बुनियाद पे होता है कि अल्लाह को मानने वाला है, अल्लाह के ऊपर सही ईमान रखने वाला है, और ये अल्लाह को नहीं मानने वाले। तो ये भी लोग जब तौहीद पर आए तो उस बादशाह ने इनके ऊपर जुल्म किया और इनका जीना वहां पे मुश्किल हो गया। और ये चंद लोग थे, चंद नौजवान थे जो अच्छी फैमिलीज के थे, अच्छे बैकग्राउंड से थे, आगे कुरान मजीद में इसके ऊपर इशारात मौजूद हैं। तो जब उन्होंने देखा कि अब हमारा यहाँ पे रहना और इस दावत के साथ इस मुआशरे में कायम रहना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने फिर हिजरत की। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करनी पड़ी, बाकी अंबिया ने हिजरत की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिजरत करनी पड़ी अल्लाह के रास्ते में, तो इन लोगों ने भी उस इलाके को छोड़ा और उस बादशाह के जुल्म से बचने के लिए कोई गार के अंदर पनाह। अलकाफ कहते हैं खुले दहाने की गार, जिसका बड़ा मुंह और आगे जाके खुली सी हो जाए, जिसके अंदर वसी जगह हो रहने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए। तो ऐसी गार के अंदर उन्होंने पनाह ले ली। जब उस गार के अंदर पनाह ली तो फिर भी अपने रब को ही याद किया, अपनी वसाइल पे, अपनी कुव्वतों पे, अपने जो सलाहियतें थी उनके ऊपर नहीं रहे, बल्कि अल्लाह से दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन, अल्लाह इन हालात में भी हम तेरी रहमत के तलबगार हैं, हमारे ऊपर रहमत फरमा, वह ये लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे मामले में रहनुमाई कर, और हमें इस जुल्म से भी निजात दे और इन मुश्किल हालात से भी निजात। तो अल्लाह तबारक ताला ने उसका यहाँ पे जिक्र किया। तो ये वही मामला था जो अंबिया के तरीके में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब निकले तो यही इस तरह दुआ करते हुए निकले, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्क, ऐ अल्लाह ताला मुझे सिद्क के साथ यहाँ से निकाल और फिर मुझे अगले शहर में सच्चाई के साथ दाखिल कर। जब मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत करनी पड़ी फिरौन के जुल्म से, तो उन्होंने भी एक बात की कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तू मेरे मेरे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर, और रब्बे इन्नी लिमा अंजलतु इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह ताला जो कुछ तू मेरे ऊपर नाजिल कर रहा है मैं उसका फकीर हूँ, मैं उसका तलबगार हूँ। तो ये उनकी दुआ भी थी। तो ये अंबिया का तरीका था कि मुश्किल में अल्लाह तबारक ताला को पुकारते थे। उसी तरह इन नेक नौजवानों के गिरोह ने भी पुकारा, फजरबना, अब अल्लाह ताला ने इनको एक निशानी बनाना था, इनके जरिए मुआशरे को दावत देनी थी, इनके किरदार को उजागर करना था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक उनके ऊपर अपनी रहमत का नुज़ूल किया। फरमाया फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीना अददा, बस हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया उस गार के अंदर गिनती के कई सालों तक। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सुला दिया। ये कान पे पर्दा बेसिकली एक मुहावरा है अरबी जबान का। इसका मतलब ये होता है कि गहरी नींद आ जाना। क्योंकि आप देखते हैं जब इंसान सोता है तो हल्का सा शोर भी उसको तंग करता है, तो उसकी नींद उससे डिस्टर्ब होती है। तो अल्लाह ताला ने वो शोर बंद कर दिया ताकि वो सुकून की नींद सो सके। सुम्मा बअसनाहुम, फिर वो कई साल वहां पे रहे। उसकी गिनती कितनी थी ये आगे वाली आयत में आएगा। उसी हालत में वो सोते रहे। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उन्हें उठाया। अल्लाह कहते हैं कि उसके बाद कई सौ साल गुजरने के बाद हमने उनको दोबारा उठाया। ये जो बेइज्जत का लफ्ज है, ये उठाने के लिए, किसी चीज को खड़ा करने के लिए या दोबारा जिंदा करने के लिए बोला जाता है। लेना अलम, क्यों उठाया? ताकि वो जान लें,
अय्युल हिज़्बैन अहसा लिमा लबिसु अमदा, कि इन दो गिरोहों में से कौन है जो मुद्दत को ज्यादा याद रखने वाला है, कि वो कितनी मुद्दत ठहरे, कौन इसको ज्यादा याद रखता है। क्या वो खुद याद रखते हैं, या उनकी आपस में जब बहस हुई तो वो दो गिरोह बन गए, कुछ कहते थे हम इतना ठहरे, दूसरे कहते थे इतना अरसा में हुआ है वार के अंदर। और एक ये भी तकसीम हो सकती है कि ये गार के अंदर जाने वाले लोग और बाहर रहने वाले लोग, इनमें से किसने ज्यादा अच्छी तरह याद रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे उनकी वो कैफियत में नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल्हक़, कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इनके बारे में अजीबो गरीब बातें मशहूर थी और सही वाक़े का इल्म नहीं था। कुरान का स्वरूप यह है कि कुरान जो तारीख इंसानी है और खास तौर पर अंबिया से और सुलहा से मुंसलिक तारीख है, उसकी भी हिफाजत करता है और उसको भी सही तरीके से बयान करता है, ताकि लोगों की इस्लाह हो और उसके हवाले से जो गलतियां हैं, गलत फहमियां हैं उनके किरदारों के ऊपर, कोई अगर हर्फ आ रहा है तो उसकी उसकी इस्लाह की जाए। अल्लाह यहाँ कह रहे हैं नहनु नकुस्सु अलैका, ए नबी हम तुझसे बयान करते हैं, हम बयान करते हैं आप पर, नबअहुम बिल हक, उनका वाकया, उनकी खबर हक के साथ। इन्नहुम, बेशक वो थे, फित्यतुन, नौजवान, चंद नौजवान, एक नौजवानों का छोटा सा गिरोह, आमनु बिरब्बिहिम, जो ईमान लाए अपने रब के ऊपर, वजिदनाहुम हुदा, और हमने उनको इजाफा कर दिया हिदायत के अंदर, हमने उनको हिदायत और बढ़ा कर दी। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में यहाँ क्लैरिफिकेशन दी कि ये नौजवानों का एक ग्रुप था, जो जिनके बारे में जो अजीबो गरीब बातें तुम करते हो, तुम्हारी कहानियां मशहूर हैं, उन सब को छोड़कर असल बात ये जहन में रखो कि वो थे कौन, उनका मकसद क्या था, उन्होंने हिजरत क्यों की, गार में पनाह क्यों ली, उनकी दावत क्या थी। वाकये की हकीकत की बजाय तुम उनके मकसद की हकीकत को समझो, जो ज्यादा रेलिवेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इंसान में। तो यही इस्लाम का और कुरान मजीद का उसलूब है कि वो वाकयात की तफसील की बजाय जो असल तफसील है, अमली जिंदगी के लिए फायदामंद और उसके असबाब हैं, वो ज्यादा बयान होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नौजवानों का एक गिरोह था जो अपने रब पर ईमान लाए, वजिदनाहुम हुदा, और हमने उनको ईमान में बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमारे लिए एक बड़ी जबरदस्त नसीहत है कि अल्लाह ताला ने उन नौजवानों का एक गिरोह करार दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को भी अगर हम देखें तो इब्तदाई तौर पर नौजवान लोग ही आपकी दावत के साथ खड़े हुए। जो बड़े बड़े सरदार थे वो तो अपने तकब्बुर में थे, ना अबू जहल ईमान लाया, ना उत्बा लाया, ना उमैया बिन खल्फ लाया, जो बड़े अबू लहब ना ईमान लाया, जो बड़े बड़े सरदार थे वो तो इस्लाम और ईमान के करीब भी नहीं करते। वो अपने तकब्बुर में, रऊनत में, बड़ेपन में रहे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमजोर लोग, नौजवानों की जमात इकट्ठी होती गई, कुछ औरतें, कुछ बच्चे, और इन्हीं के साथ अल्लाह ताला ने इस्लाम को उस वक्त की तकवीयत दी। इसलिए आप देखें कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में जिन लोगों को जिम्मेदारियों पर फायज करते थे उनमें से अक्सरियत नौजवानों की थी। आप तशरीफ ले जाते शहर से बाहर कभी किसी काम के लिए, किसी को गवर्नर बनाते, बिल्कुल नौजवान होता। जिहादी काफिले रवाना करते, उनके ऊपर अमीर मुकर्रर करते, नौजवान होता। सबसे आखिरी जो गजवा आपने अपने जिंदगी में एक सरिया, उस जंग को कहते हैं जिसमें खुद नहीं गए लेकिन अमीर मुकर्रर किया, उसामा बिन जैद को किया, तो 20-21 साल का नौजवान था। तो ये नौजवानों ने इस्लाम की दावत में हमेशा बड़ा किरदार अदा किया है। आज के नौजवानों को भी सोचना चाहिए कि उनका क्या किरदार है इस वक्त, कितना वो इस्लाम के लिए और अपने दीन के लिए और अपनी कौम के लिए वक्त निकालते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हैं, उनका हिस्सा है इस्लाम की दावत में, और कितना कोई वो इससे दूर है, ये हमें सोचना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा कि नौजवानों की जमात है। और दूसरी बड़ी जबरदस्त बात की, वजिदनाहुम हुदा, हमने उनके ईमान में इजाफा कर दिया। ये मुसलमानों का एक अकीदा है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो पहली किताब है किताबुल ईमान के अंदर ये जिक्र उन्होंने किया है। 8 आयात उन्होंने वहां पे कुरान मजीद की दर्ज की हैं और बहुत सारी अहादीस, और उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि ईमान में इजाफा होता है, ईमान में कमी होती है। जब बंदा अच्छे अमाल करता है, उसकी कैफियत बेहतर होती है तो उसका ईमान बढ़ जाता है। जब उसके अमाल कमजोर होते हैं, कैफियत ठीक नहीं होती, तो उसका ईमान भी कम हो जाता है। ईमान बढ़ता है, ईमान कम होता है, ये अकीदा है। कुरान में कई आयतें हैं, जैसे एक जगह पे सूरत अनफाल के शुरू में अल्लाह ने फरमाया, जब
वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तो ईमान में कमी भी होती है। कमी किस तरह होती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बदकार इंसान बदकारी करता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं होता, ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। जब गुनाह का काम होता है तो ईमान कमजोर पड़ जाता है, जब नेकी होती है तो ईमान बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे ईमान को बूस्ट मिले। और ये हदीस के अंदर भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर बंदे के दिल के अंदर ईमान बोसीदा हो जाता है जिस तरह कपड़ा बोसीदा होता है। तो तुम्हें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और असबाब इख्तियार करने चाहिए कि वो हमारे ईमान की तजदीद करता रहे। वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने बांध बांध दिया उनके दिलों के ऊपर, इस कामू, जब वो खड़े हुए, फकालू, और उन्होंने कहा, रब्बुना, हमारा रब, रब्बुस समावाति वल अर्ज, वो है जो आसमानों का और जमीन का रब है। लन नदउवा, हम नहीं पुकारते, मिन दूनी, उसके अलावा, इलाहन, कोई भी इलाह। लकद कुलना इजन शतता, बिलाशुबा यकीनन हम उस वक्त हद से गुजर जाएं अगर ऐसा कोई काम करते। अल्लाह ने कैफियत बयान की कि जब वो अब उस बादशाह की दरबार में थे, जब वहां उन्होंने अपनी दावत को पेश की, तो वो बादशाह तो कई रब मानने वाला था, तौहीद पर नहीं था। तो अल्लाह कहता है कि उस कैफियत में बादशाह की कुव्वत, उसका जलाल, उसकी हैबत, उसका जुल्म, उस सब के मुकाबले में हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। ये जो दिलों की मजबूती अल्लाह तला देता है। आप देखते नहीं है कि आज से 20 साल पहले अगर हम अपने इस खित्ते के हालात को देखें, जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी इतनी बड़ी कुव्वत के साथ आए थे और पाकिस्तान को वो कहते थे कि आप डिसाइड करें, पत्थर के जमाने में जाना चाहते हैं या सिविलाइज दुनिया के साथ खड़े होना चाहते हैं, आप फैसला करें, आप दहशतगर्दों के साथ हैं कि हमारे साथ हैं। उस वक्त उनकी रऊनत को देखें और फिर उन हौसले वाले लोगों को देखें जो 20 साल उनके सामने खड़े हुए, कहाँ से उन्होंने हौसला लिया? ये अल्लाह ही है। हमारा बतना अला कुलूबिहिम, इस काम, जब अल्लाह के बंदे उसके लिए खड़े हो जाते हैं, उसके दीन के ऊपर कायम हो जाते हैं, फिर अल्लाह उनको तसल्लियां देता है, हौसले देता है, इस्तकामत देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद जारी रखोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वो सब भी तकदामकुम, और तुम्हारे कदमों को मजबूत कर देगा। तो अल्लाह ने उनके कदम भी, उनके दिल भी मजबूत किए, उनको तकवीयत दी। और फिर उन्होंने उस बादशाह के दरबार में अपनी दावत पेश की कि हम अकीदा ये रखते हैं, तू हमारा रब नहीं है। जिन बातिल खुदाओं की तू परस्तिश करता है, जिनकी तरफ दावत देता है, वो भी हमारे रब नहीं है। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब तो वो है जो आसमानों का रब है, जो जमीन का रब है। लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन, हम उसके अलावा किसी को इलाह नहीं मानते, किसी को मुश्किल में नहीं पुकारते, किसी के सामने अपनी तकलीफें नहीं रखते, किसी को अपनी जरूरतें पेश नहीं करते, हम सिर्फ उसी रब को पुकारते हैं। लकद कुलना इज़न शत्तता, अगर हम भी तुम्हारी तरह इसी तरह करना शुरू हो जाएं कि उस रब के अलावा किसी को पुकारें, मुश्किल किसी और के सामने रखें, हाजतें किसी और से मांगें, तो फिर हमारा मामला भी तुम्हारी तरह ही हद से बढ़ जाएगा। तो हम हद से बढ़े हुए नहीं है। इस आयत में जहाँ ये बात है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को हौसला देता है, हिम्मत बनाता है, उनके दिल मजबूत करता है, उनको इस्तकामत की तौफीक देता है, वहाँ तौहीद की भी बड़ी जबरदस्त दावत है। और तौहीद की दो बड़ी किस्में यहाँ पे बयान हुई हैं। तौहीद को अगर समझना है तो उसकी तीन बड़ी किस्में हैं। पहली किस्म है तौहीद रबूबियत, ये उलमा ने हमारी आसानी के लिए बुनियादी तौर पर कुरान और सुन्नत में से अखज की है। रबूबियत की तौहीद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात का खालिक है, मालिक है, पैदा करने वाला है और इसका निज़ाम चलाने वाला है, इस पूरी मखलूकात की ज़रूरतों का ख्याल रखने वाला। ये दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं, पैदा भी रब ने किया और निज़ाम भी अल्लाह तबारक व तआला चला। दूसरी तौहीद की किस्म है, इस पर इंशाल्लाह बात हम किसी वक्त मजीद तफसील से करेंगे, तौहीद उलूहियत। ये सबसे बड़ी दावत है अम्बिया की, कि जब पैदा रब ने किया, निज़ाम वो चलाता है, जरूरतें वो पूरी करता है, तो फिर इलाह भी वो है, इबादत भी खालिस उसकी होनी चाहिए। चाहे इबादत जबान से हो, चाहे इबादत माल से हो, चाहे इबादत जिस्मानी हो, जो भी इबादत की किस्म हो वो खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। जैसे हम अत्तहियात में कहते हैं ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, हमारे पाकीज़ा कलमात और हमारी बदनी बातें और हमारी माली बातें, ये सारी अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
میرا زندہ رہنا، فوت ہو جانا، نمازیں، قربانیاں، جو بھی عبادات اس میں للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ لا شریک لہو، کسی کو میں شریک نہیں ٹھہراتا ان عبادات میں اللہ کے ساتھ۔ وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے بطور نبی حکم دیا گیا۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اسے تسلیم کرنے والا بھی ہوں۔ تو یہ توحید الوہیت ہے کہ اللہ کو ہی الہ ماننا، اور ہر طرح کی عبادت، زبان سے عبادت ہے مانگنا، سوال کرنا، فریاد کرنا، پکارنا، مال سے عبادت ہے صدقہ خیرات دینا، مسیح کوئی بھی چڑھاوا چڑھانا، کوئی چیز دینا، ساری اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور بدن سے عبادت میں نماز ہے، رکوع ہے، طواف ہے، آپ بہت بہتر طریقے سے ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے نام بیان کیے اور اپنی صفتیں بیان کی قرآن مجید میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام اور صفتیں بیان کیا حدیث میں، ان پہ پورا پورا ایمان لانا، اور یہ اسماء و صفات کو ماننا، تسلیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کر لیتا ہے، ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا لیتا ہے، ان ناموں کے اوپر پہرا دیتا ہے، تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تین توحید قسمیں ہیں جو انشاءاللہ ہم کہیں جہاں جہاں موقع ملے گا ان کو بھی ڈسکس کرتے جائیں گے۔ تو یہی بات انہوں نے کی کہ اگر ہم اس توحید سے ہی ہٹ گئے تو پھر تو ہم خسارے میں پڑ گئے، ہمارا معاملہ خراب ہو گیا، ہم حد سے بڑھ گئے، جس طرح تم پڑھے ہوئے ہو۔ ہا، یہ ہے ہماری قوم، ہا یہ ہیں قومنا، ہماری قوم کے لوگ، اتخذوا من دونہ آلہۃ، جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ معبود، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنی توحید کے اعلان کے ساتھ ساتھ قوم کے عقیدے کی اصلاح بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہماری قوم کا حال ہے، یہ اللہ الہ العالمین کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے چھوٹے چھوٹے الہ بنا لیے ہیں، ان کے لیے باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر یہ ان کو الہ مانتے ہیں تو ان کے الہ ہونے کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، یا ان کا کوئی ایسا کام ہو، ان کے اندر ایسی صفات ہوں جو الہ کے اندر ہوتی ہیں، یا اللہ نہیں کہا ہو کہ یہ تمہارے الہ ہیں، کوئی دلیل ہو۔ یہی بات یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت میں کہی تھی، جب وہ جیل کے اندر تھے تو دو لوگوں نے ان سے پوچھا اپنے خوابوں کے بارے میں، انہوں نے کہا میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا جب کھانا آئے گا، اس سے پہلے تم میری ایک بات سنو، ارباب متفرقون خیر